Let me tell you one thing. Why I'm saying perseverance should be learned from him, because recommended in 9th attempt for the first recommendation in 9th attempt, then 10, 11, 12. I got 3 conference out consecutively, and thereafter few screen outs as well and conference out. So the journey was long, but I knew I'll make it because sir had full confidence in me. Sir took my interview and he immediately told that you are gonna get recommended one day. तो इसमें मेरे को पूछा गया कि why you are getting screen out in your previous attempts. तो पिछले screen out में ऐसा हुआ था कि SSB इलाहाबाद में blank slide आ गई थी. तो मेरे से coincidentally निकल गया कि you people didn't show the picture. So I wrote था तो वो हंस रहे थे, बस यही funny moment. Girlfriend? No sir, I don't right now. 4 recommendation यार. अच्छा, how many proposals you got? I got the proposal but I don't have. अच्छा, you didn't accept. हाँ, ये तो वो 1.5 years down the line will be looking him in the overalls wearing bands. The only question now which is incomplete, what he'll be getting, fighters, helicopters or transport. Hello everyone, today I am glad that I have got a student who have come to me today along with a Kaju Katli. He is an example of perseverance, never say die attitude, recommended for all 3 services, Army, Navy and Air Force. He is about to join Air Force Academy in June 2025 ending. इसकी स्टोरी बहुत मजेदार है, बहुत स्ट्रगल रहा है इस लड़के का. I want you all to hear him. I am sure all the aspirants will be getting some or the other learning in some or the other manner. We have got a special bond because not just because I have trained him for SSB. Obviously, इसको SSB का training तो मैंने दिया ही दिया है. That is fine. In addition to that, he belongs to an NCC unit जहाँ मैं भी एक JD cadet होता था. तो we have got a same NCC unit also. He is a cadet of 1 MP Air Squadron Indore. So आज मैं कम बोलूँगा, बहुत कम बोलने की कोशिश करूँगा. I want him to speak more, right? So Vivek, all your journey, whatever you feel, some of your tips, Yes. How your journey got started. By the way, let me tell you one thing. Why I am saying perseverance should be learned from him, because recommended in 9th attempt for the first attempt, recommendation in 9th attempt, then 10, 11, 12. तो बहुत struggle होता है इस इतने attempts तक जाने के लिए. Over to you, Vivek. First, I'd like to introduce myself. My name is Vivek Gohade and I belong to a village in Baitul district of Madhya Pradesh. So, I would like to give you an introduction about my education. So, I have done my schooling from my village itself, from a government school, and that too from Hindi medium. So, it was a challenge for me to prepare for the SSB. So, the journey has started in 2019 when I have finished my 12th class and I was preparing for the NDA. Thereafter, I came to Indore and I joined PMB Gujarati Science College, and there itself I took NCC Air Wing. So I was a cadet at 1 MP Air Squadron. Unfortunately, I couldn't clear my NDA written examination because I knew my strength that I was not good at English at that point of time. So I was not confident enough to appear for the SSB. So I had this thing in my mind that once I'm done with my graduation, I'll prepare for the CDS entry, NCC special entry, etc. So I have started preparing for the written examination and SSB at my own from second year itself. And after my graduation, I have cleared my FCAT examination, and my first FSB was scheduled on 25th of September in 2023 in Gandhinagar. So before that, I was already knowing about Ankit Pal sir since he had attended one of the CATC camp held at our NCC unit. So I knew about him. So I approached him for the guidance, and before my first FSB, I came and attended the workshop. But since I was not prepared enough at that point of time, so I couldn't make it. I got 3 conference out consecutively, and thereafter few screen outs as well and conference out. So the journey was long, but I knew I'll make it because sir had full confidence in me. Sir took my interview and he immediately told that you are gonna get recommended one day. By seeing my सॉरी मैं इंटरप्ट करता हूँ, मैं बीच बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा भाई. इसने जो बातें बोली है ना, स्पेशली प्लीज फोकस कि ही टोल्ड इनिशियली दैट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज. बैतूल एक जगह है विच इज प्रोबेबली इन दी साउथ ऑफ मध्य प्रदेश. सदर. जब आप नागपुर जाते हैं ना फ्रॉम
Bhopal to वो वाला road, तो almost border of you can say Madhya Pradesh, right? Coming from a village, he improved his English when came to the Indore, right? Why am I highlighting is because a lot of people who are having fear of English, they are not able to speak in English, especially they are coming from a rural background, तो उन्हें लगता है इंग्लिश नहीं आती, हो ही नहीं पाएगा. देखो भाषा है, पंजाबी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, बोल के आ जाती है. आपके सामने अभी तक देखो, मैं हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश, राइट? अगर ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. नॉट अ वेरी बिग डील, इट इज ऑल अबाउट एफर्ट्स. ठीक है ना? और ये जरूर ध्यान रखना है. सो प्लीज, इसलिए मैं बीच बीच में हाईलाइट करूंगा. देखो, ये चीजें सीखने वाली होती है मैं जब रिकमेंडेड कैंडिडेट हो. ठीक है ना? ऑल योर्स. सो आफ्टर दैट मतलब प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, तो कंसेक्यूटिवली मैं स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस था कि आई विल गेट रिकमेंडेड फॉर श्योर. क्योंकि जब मैंने पहली वर्कशॉप अटेंड करी सर की, तब सर ने मेरा इंटरव्यू लिया. ही सॉ माई रिकॉर्ड कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ. और उसके बाद में भी सर को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने गाइड किया थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को फॉर एसएसबी के लिए. तो हमारे वर्कशॉप में भी कुछ कैंडिडेट्स थे जिनको सर ने बोला था कि वो रिकमेंड हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है एक बार कैसी परफॉर्मेंस है. बट इट्स नॉट अबाउट एस्ट्रो टॉक. डोंट टेक इट लाइक कि बाबा जी के वो. मैं आई टेल यू व्हाई, लाइक ही टोल्ड ना, मैंने उसको बोला यू विल गेट रिकमेंडेड. आई टेल यू व्हाट इज द रीजन. देखो, जब एक बच्चे का पीआईक्यू फॉर्म था ना, आई सो यार तुम्हें तो निकल जाना चाहिए था. यू मस्ट हैव गॉन टू एनडीए एंड अदर थिंग. रिकमेंडेड जब ये मेरे पास आया, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स ही वाज कॉन्फ्रेंस आउट, तो अभी तक तो रिकमेंड हो जाना चाहिए था. बिकॉज ही इज गुड एट एकेडमिक्स, गुड एट स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट. तो हाँ, जब चेक करा तो कई चीजें, छोटी छोटी एरर्स आते हैं साइक में, इंटरव्यू में, रिलेटेड टू प्रेजेंटेबिलिटी. ठीक है, बट व्हाई आई एम सेइंग इज, ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बच्चे का जब रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, जस्ट बिकॉज ऑफ अ बिट लो कॉन्फिडेंस, उसे ऐसा लगता है मेरे से होगा ही नहीं. अंडरस्टैंड, इफ यू आर सो गुड इन योर रिकॉर्ड, इंग्लिश कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाता है. अच्छा, मैंने भी इसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया. आई डोंट हैव अ टैबलेट दे कैन गिव. कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स ऑन योर ओन. गॉट इट? जब आदमी सेल्फ बिलीव करता है ना, मैं फोड़ दूंगा, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, अपने आप आता है. यू मस्ट हैव हर्ड लॉट, यू नो, इन व्हाट यू कैन से, मीडिया आल्सो, सोशल मीडिया आल्सो, मोटिवेटिंग, कुछ नहीं होता मोटिवेटिंग. मोटिवेशन खुद आना चाहिए. इट शुड बी सेल्फ मोटिवेशन. यू मस्ट नॉट डिपेंड ऑन somebody coming and motivating you, because if somebody motivates you for a short while, you will get lot of goosebumps. आज से मेहनत करूंगा, उसके आधे घंटे छोड़ यार, पोए खाए देखे जाएंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो बेस्ट पार्ट वाज विद हिम, व्हाट आई ऑब्जर्व, कि ही वाज रेडी टू पुट एफर्ट्स. जस्ट नॉट कि रिकॉर्ड अच्छा, रिकॉर्ड के साथ साथ मैं मेहनत भी कर रहा था. एंड लेट मी हाईलाइट यू पीपल दैट he had lot of financial issues also. So we have got a system that we are helping people who have got financial issues also. तो कई बार होता है बंदा ना पैसे के चक्कर में डाउन हो जाता है, ये वो 100 तरह की चीजें होती है, राइट? तो जस्ट टू हाईलाइट आउट कि ये इसका जो रिजल्ट इज नॉट अ गेम ऑफ वन डे. आई एम श्योर ही मस्ट हैव, जितना मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसका याद है, उससे कई गुना ज्यादा इसने फेस किया होगा. ठीक है, बिकॉज मेरे सामने तो 2 4 5 एग्जाम्पल्स आए इसकी लाइफ के, बट बैकएंड से बहुत स्ट्रगल रहा होता है. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर, जब मैं 12th से यहाँ आया तब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी इतना अच्छा नहीं था. तो मतलब एयर एनसीसी में आपको सेलेक्ट होने के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है सीओ को. सो आई गिव दैट इंटरव्यू और मैं उसमें फेल हो गया था. सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे एंड आई वाज वन ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट सीट वाज वेकेंट. और तो मेरे को जैसे तैसे सीट मिल गई थी. बट दीज डे माय कमांडिंग ऑफिसर मस्ट बी प्राउड ऑफ मी कि मैंने एसएसबी वगैरह क्लियर कर ली, ये सारी चीजें इतनी बड़ी अचीवमेंट. और उसके बाद में स्ट्रगल रहा है. मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इम्प्रूव्ड माय इंग्लिश कम्युनिकेशन. आ रही थी लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी फिर भी. बट वंस आई हैव अटेंडेड द वर्कशॉप कंडक्टेड बाय सर, तो ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट्स और जो भी वर्ड स्टीलिंग, ये सारी प्रैक्टिसेस जब मैंने करी, उसके बाद में मेरा लेवल काफी इम्प्रूव हो गया. बाय द 9th and 10th अटेम्प्ट मेरा ग्रुप डिस्कशन में इतना अच्छा लेवल हो गया था कि मेरे को लिमिट करना पड़ता था अपने आप को कि मैं ज्यादा नहीं बोलूं, डोमिनेट नहीं करूं. सो दिस वाज द थिंग. Actually, GD focus a lot. Reason is when you go for a GD, your initial 2 group discussions, subsequently your group planning exercise plays the most important role for a GTO. So it is unlike any other coaching. ऐसे नहीं कि बस GD 1 2 है. यहाँ तो यार we are like we focus on at least 40 50 GD. तब आगे तब जाके मजा आता है, राइट? एंड आई वांट टू हाईलाइट वन मोर थिंग. आई डोंट नो सर इज लिसनिंग और नॉट, but if somehow sir listens, then I must highlight the commanding officer also.
During his time when he joined the NCC, the Yes, CEO sir. was Wing Commander Aditya Singh अमित Pawar. व्यास sir. अच्छा, अमित व्यास सर हाँ. एंड आफ्टर दैट आदित्य सिंह पवार सर, मुझे लगता है मेजर टाइम तो उनके हाँ अंदर आदित्य सर थे. एक्सेलेंट सीईओ, राइट, विंग कमांडर आदित्य सिंह. उन्होंने सिर्फ, आई एम श्योर नॉट ओनली ही, अंडर हिम लॉट ऑफ कैडेट्स हैव गॉन, गॉट रिकमेंडेड, जॉइन वेरियस एकेडमीज. जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था विद कैडेट्स, द बॉन्ड दैट डायरेक्टली सीईओ इज गेटिंग, यू नो, इंटरेक्शन विद द कैडेट्स, दैट रियली बूस्ट्स द कॉन्फिडेंस. तो मुझे लगता है तुम लोगों की सबकी सक्सेस में इट इज हिज रोल आल्सो इन सम और द अदर मैनर. मतलब वेरी मोटिवेटिंग सीईओ. उनके कैंप्स में भी आई हैव ऑब्जर्व दैट सीईओ, you know, directly, you know, listening to the cadets and obviously helping them out. That is also, and एक और चीज, NCC plays a vital role in grooming a cadet. मतलब मुझे लगता है इंडिया में सबसे अच्छा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज ऑल्सो द मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म टू ग्रूम योर पर्सनालिटी ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन. एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म. बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली इफ यू वांट टू गो इन डिफेंस. पर हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारा कोविड बैच था, तो सेकेंड और थर्ड ईयर में वी डिडंट गेट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि कैंप्स अटेंड नहीं किए या बी या सी सर्टिफिकेट में ग्रेडिंग अच्छी नहीं आई, तो एसएसबी में क्या जवाब देंगे. मैं बता दूं, मैंने सिर्फ 2 सीएटीसी कैंप्स अटेंड करे हैं एनसीसी में, और जब बी और सी सर्टिफिकेट की बात आई तो मेरी ग्रेडिंग भी बी ग्रेड रही है. एंड इन एवरी इंटरव्यू विच आई हैव अपीयर्ड, ये क्वेश्चन आया है कि ये ग्रेड क्यों, बी ग्रेड क्यों रहा है मेरा. तो उसका भी मैंने एक लॉजिकल आंसर दिया, जस्टिफाई किया. क्या था आंसर? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो बी ग्रेड आ जाए तो वैसे ही डरते हैं, यार अब तो रिकमेंड नहीं होगा. व्हाट वाज योर आंसर? जस्ट शेयर आउट. माय आंसर वाज सिंपल कि मेरे रिटन एक्सप्रेशंस इतने अच्छे नहीं थे व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द एग्जामिनेशंस. तो वो जो स्टिपुलेटेड टाइम था जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखने होते हैं, स्पेशली इन कॉमन सब्जेक्ट, इफ यू नो, काफी बड़े लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं, तो वो मैं फिनिश नहीं कर पाया था क्योंकि तब इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, एंड स्पेशली ग्रेजुएशन के पेपर्स भी मैं हिंदी में ही लिखता था. तो दिस वाज द थिंग. एंड अदर देन दैट ड्रिल वगैरह में भी मेरा इतना अच्छा नहीं था, तो मैं आरडीसी भी नहीं गया. अच्छा, तो ये आंसर कॉपी आप लोग मत कर देना. व्हाई आई आस्क्ड हिम टू टेल हिज आंसर, बिकॉज़ आपको ये समझना है आंसर देते कैसे. इट्स ऑल अबाउट यू विल टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स. आपसे नहीं हुआ तो अपनी गलती खुद मानेंगे. कभी इंटरव्यू में वो चेकआउट करते हैं, आप सिस्टम को ब्लेम तो नहीं करते, सर पार्शियलिटी हुई, सर वो ए इन्होंने मेरे साथ बायस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. यू टुक अकाउंटेबिलिटी, अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना. दैट सर मुझे लगता है मैं अच्छे से नहीं लिख पाया एक्सप्रेसिव एंड ऑल दैट, राइट. तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आप खुद लें, जो भी आपको लगता है व्हाटएवर वाज दैट, राइट. उसके बाद में इंप्रूवमेंट कैसा आता है वो इंटरव्यू में बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपकी कोई भी वीकनेस हो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, पर वीकनेस है उसके बाद में आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं. अगर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट भी है और अगर आपको इंटरव्यू में बताते हैं, दैट्स द प्लस पॉइंट. यस यस. और एज व्हाट ही हाईलाइटेड, यार ऐसा नहीं है कि अगर आपने आरडीसी नहीं लगाया, यू डिडंट वेंट फॉर अ वाईपी और यू डिडंट वेंट फॉर अ टीएससी वीएससी, सो यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड. ट्रस्ट मी, it is good that you had been to national level camps. It is very very good. On the flip side, it doesn't matter कि if you didn't went तो you will not get recommended. देखो बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी के स्टूडेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ academic especially attendance issue, they are not able to go for the camps. So in SSB there is no bias, everybody is equal. The only point is if you had been to national camps like RDC, VSC or any other of them, ALC, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी होती है उस चीज के बारे में नॉलेज हो आपको. Got it? There are a lot of candidates सिर्फ 2 CATC करके भी रिकमेंड हुए. तो जिनका जो कैंप्स नहीं जा पाए, यू मस्ट नॉट गेट डिसहार्टन. गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू. इट इज ओनली योर परफॉर्मेंस इन एसएसबी. गॉट इट? अच्छा, ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहा है. एक क्वेश्चन आता है, आई एम श्योर आप आए होगा अभी चेक में ऑटो फ्लाई. ये बहुत सारे लोग प्रिपेयर ही नहीं करके जाते हैं. क्या आया था क्वेश्चन? क्या था? यस सर, इन एवरी इंटरव्यू व्हिच आई अपीयर्ड इन एयरफोर्स, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच की व्हिच एयरक्राफ्ट वुड यू लाइक टू फ्लाई. तो मैं तो सर हमेशा बताता था Su-30 MKI बिकॉज आई लाइक दैट एयरक्राफ्ट, और उसकी मैंने सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह पढ़ रखी थी. तो ये काफी इजी होता है उनको समझाना, क्योंकि उसके बाद क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई दिस एयरक्राफ्ट, व्हाई दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट. और ऐसा नहीं है कि सब फाइटर्स बोल रहे हैं इस टाइम पे कि हाँ फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना है, तो ऐसा नहीं है. अगर आप ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हो, हेलीकॉप्टर्स में जाना चाहते हो, या आपके पर्सनल रीजंस है, वो बता सकते हो. मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत प्रोमिनेंट है जो आता है. मतलब इफ यू रियली वांट टू गो फाइटर्स देन ओनली टेल, otherwise no need to just speak out Rafale, Su-30, Mirage unnecessarily. If you are keen interested for helicopters, you can definitely tell. Only important is reason. कई लोग Mi-17 के लिए होते हैं,
बड़े पैशनेट, सम पीपल वांट टू गो फॉर चिनूक, सम पीपल वांट टू गो फॉर अपाचे, कई लोग ट्रांसपोर्ट के लिए आजकल बड़े इंटरेस्ट होते हैं, C-130J, IL-76, है ना? तो इट इज योर चॉइस. द ओनली पॉइंट इज जिस एयरक्राफ्ट को आप हाईलाइट करोगे यू मस्ट हैव डीप नॉलेज अबाउट दैट. देखो अच्छा ये सब क्यों होता है, देखो आज से 15 साल 20 साल पहले इतना डिटेल में नहीं जाते थे. अब इसलिए क्योंकि एक्सपोजर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास एक्सपोजर बहुत है सोसाइटी में एज कंपेयर टू 20 years बैक. तो आपने उनको एक्सप्लोर करा कि नहीं. और स्पेशली बीइंग इन एनसीसी यू हैव गॉट लॉट ऑफ पीआई स्टाफ, है ना, हु हैव गॉट अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन वेरियस एयरक्राफ्ट्स. टेक्निकल नॉलेज बहुत होता है, तो आपने जानने की कोशिश करेगी. सेम इफ यू आर गोइंग फॉर एन आर्मी, आर्मी में आर्म्स का पूछा होगा विच आर्म्स यू वांट टू जॉइन. यस सर. है आर्मी में जो भी एसएसबी के लिए जाएगा दे डू आस्क विच आर्म्स यू वांट टू जॉइन एंड व्हाई. क्या पता था वहां? सर जैसे मैं एयरफोर्स में भी एविएशन में जाना था चाहता था, एयरविंग कैडेट था, तो मैंने आर्मी में भी आर्मी एविएशन बोला. पर आर्मी एविएशन से काम नहीं चलेगा. पर्टिकुलरली अगर आप आर्मी में जा रहे हो और एविएशन बोलते हो तो आपको एक पेरेंट आर्म भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी साइड में, बीट आर्मर्ड कोर हो गई या इन्फेंट्री हो गई, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं. अच्छा व्हाई एयरफोर्स? देखो इस बार तीनों चॉइस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. व्हाई एयरफोर्स? सर ओनली बिकॉज ऑफ फ्लाइंग. मतलब जब छोटा था तब सपना था कि हाँ फ्लाइंग वगैरह करना है. फिर उसके बाद में पता चला कि इफ यू वांट टू बिकम कमर्शियल पायलट तो उसकी अच्छा मतलब कमर्शियल की पहले से प्लानिंग है, मतलब एयरफोर्स में ट्रेनिंग लेनी है? नहीं सर, मतलब कमर्शियल का था कि हाँ उसमें बने तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती फैमिली वगैरह. तो फिर पता चला एनडीए के बारे में कि इसके थ्रू आप एयरफोर्स में जा सकते हो एंड यू कैन सर्व. नहीं बट ऑब्वियसली द गेट सिंस यू आर गोइंग फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर एक अच्छे यू नो फ्लाइंग आवर्स हो जाएंगे देन यू कैन कम आउट आफ्टर 14 years or like 10 years. एंड इफ यू विश टू गेट इन द सिविल, मतलब मुझे ज्यादा सिविल एविएशन का नॉलेज नहीं है, बट अगर कोई नंबर ऑफ आवर्स रह भी गए तो फ्लाइंग क्लब से कंप्लीट करिए सिविल ऑल्सो, राइट? दोनों का अलग ही मजा है ना? तो सर पहले था कि सिविल में जाना है, जब तक मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता था. तो सिविल की फ्लाइंग रिस्ट्रिक्टेड है, आप सिर्फ वही एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हो. नहीं जब एयरफोर्स के बारे में पता चला तब फिर पूरा नहीं, इट इज गुड. मतलब ये मुझे लगता है इट इज अगेन टू अर्ली टू टेक अ कॉल. व्हेन यू विल गेट इन द सर्विस you will get lot of things in your mind, right? तो प्लस माइनस हर सिस्टम में होते हैं. सिविल एविएशन का अपने ही एक मजा है ना? there are lot of benefits there which you don't have in defense. there are lot of benefits in defense which you don't have there. every system has got plus minus. तो मुझे लगता है वो खुद का तेरा ही कॉल होगा, बाद में समझ में आएगा. ठीक है ना? That's good. तो this was just a small interaction and विवेक from your side कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में आया हो या जीटीओ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो that you want to share which was slightly unique which can give some learning to the SSB aspirants? सर ऐसे तो कोई यूनिक एक्सपीरियंस रहा नहीं है, इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए. हाँ एक यूनिक एक्सपीरियंस ऐसा था जीटीओ में कि एक अटेम्प्ट में जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो इसमें मेरे को पूछा गया कि व्हाई यू आर गेटिंग स्क्रीन आउट इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स. तो पिछले स्क्रीन आउट में ऐसा हुआ था कि एसएसबी इलाहाबाद में एक ब्लैंक स्लाइड आ गई थी. तो मेरे से कोइंसिडेंटली निकल गया कि यू पीपल डिडंट शो द पिक्चर, सो आई रोट द. अच्छा वो ब्लैंक स्लाइड थी एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि कोई पिक्चर आएगी? हाँ तो वो आई नहीं, कुछ माल फंक्शन करके उनका सॉफ्टवेयर वगैरह. तो ये इंसिडेंट था, तो वो हंस रहे थे बस, यही फनी मोमेंट था. और एएफएसबी में कौन कौन से बोर्ड हो गए? सर फर्स्ट टाइम आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम नहीं व्हिच ऑल एसएसबीज यू हैड बीन? सर गांधीनगर, वाराणसी एंड देहरादून. मैसूर नहीं गया बस? मैसूर और गुवाहाटी. मैसूर गुवाहाटी. और इधर आर्मी में? आर्मी में सर बैंगलोर नहीं गया. बैंगलोर नहीं गया. बाकी सारे हो गए. नेवी में? नेवी में सर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया था नेवी का, उसमें रिकमेंड हो गया था भोपाल से. अच्छा भोपाल. हाँ. कौन सा एसएसबी बोर्ड सबसे अच्छा लगा ओवरऑल? खाने में, स्टे में, योर चॉइस फर्स्ट वन. एएफएसबी देहरादून वाज द बेस्ट एएफएसबी बोर्ड आई हैव एवर गॉन देयर. लाइक वहां का वेदर काफी अच्छा था, घूमने के लिए बहुत सारी. कौन से महीने में गया था? मैं गया था सर नवंबर में. तभी जून में नहीं है. वेदर अच्छा था, प्लस बहुत सारी चीजें वहां घूमने के लिए. एंड एएफएसबी देहरादून इज वन ऑफ द फ्यू एएफएसबी सेंटर्स जहाँ पे आपको आउट पास मिलता है बाहर घूमने जाने के लिए. और सबसे पहला में दे रहे हैं ये सब? नहीं सर, सिर्फ देहरादून में दे रहे हैं और मैसूर में दे रहे हैं. और काफी पुराना बोर्ड है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है वहां पे, काफी वेल डेवलप्ड है. गांधीनगर और गुवाहाटी काफी. अच्छा लास्ट क्वेश्चन, राइट? गर्लफ्रेंड? नो सर, आई डोंट. 4 रिकमेंडेशन यार. अच्छा हाउ मेनी प्रपोजल्स यू गॉट? सर आई गॉट द प्रपोजल बट आई डोंट हैव. अच्छा यू डिडंट एक्सेप्ट? भाई ये तो. अच्छा हाउ मेनी यू प्रपोज्ड? नो. क्यों गर्लफ्रेंड क्यों नहीं भाई?
सर अभी तक एसएसबी वगैरह में ही लगा हुआ था। करेक्ट, तो चलो, I didn't find the right one as of now. you didn't find the right one. So what are the two parameters you are looking in the right one as per you? सर लॉयल्टी लॉयल्टी वो तो बहुत मिलेगी यार, यार लॉयल्टी में क्या है? और सर वाइब मैच होना चाहिए। वाइब, तो वाइब कैसे मैच होती है? ये छोटा सा एसएसबी टाइप इंटरव्यू हो रहा है हाँ। सर वो तो वंस यू स्पेंड टाइम उसके बाद ही पता चलता है। चलो, आई विश दैट यू गेट अ girl with whom your vibes will match, and of course loyalty factor will also be there with you. Sir, one more thing which I would like to highlight over here. I have given 12 attempts as of now और बहुत सारे कैंडिडेट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है और बात हुई है उनसे, और उनकी मैंने एसएसबी जर्नी भी देखी है। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि इट्स डिफिकल्ट, मतलब ये फुलिशनेस है अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो एसएसबी के लिए। तो इट्स बेटर कि जैसे ही आपकी एसएसबी आ रही है आप कोचिंग लो, आप मेंटरशिप लो कहीं से भी, इट डजेंट मैटर आप कहाँ से ले रहे हो, बस फाइंड आउट करो कि प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है कोचिंग का, या जिससे भी आप मेंटरशिप ले रहे हो, सिलेक्शन आ रहा है वहां से नहीं आ रहा है, और गाइडेंस लेके ही जाना चाहिए। ये देखो एक्चुअल में हो ये रहा है ना, पॉइंट इज कि सिंस यू मेंशन कंपटीशन इज देयर, अगर आज से आप दो एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, इफ आई टेल माय, देखो 20 इयर्स बैक अगर आप देखोगे, वी आर इन 25, आप 20 इयर्स बैक जाओ तो देयर वाज नो ट्रेंड ऑफ कोचिंग, आई से बहुत रेयर, देयर वर फ्यू कोचिंग्स ओनली इन दिल्ली और चंडीगढ़, है ना, एंड आई बिलीव 10 आउट ऑफ 6-7 people were going unprepared on their own only, but things have reversed now, right? तो समय के हिसाब से yes, अगर आप prepared होकर जा रहे हो, you are taking some mentorship, so you will always be having edge, you are well acquainted to the things what are gonna come in front of you. But मैं यहाँ एक चीज mention अभी भी कर दूं, इस बात को ना मेरी ना विवेक की ऐसा मत लेना that because of any personal reason of yours, if you are not able to take coaching or any mentorship or any guidance from anyone, it does not mean that you cannot get recommended. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेना एक आपके लिए एज होगा जो आपको रास्ता बहुत इजी कर देगा, पर आज भी लोग रेकमेंड होते हैं विदाउट एनी कोचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप। अरे लोग आईएएस का एग्जाम निकाल देते हैं यूपीएससी यार विदाउट कोचिंग ऑन देयर ओन। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर स्टेइंग इन अ रूरल एरिया और दे गॉट अ फाइनेंशियल इश्यूज और वेरियस अदर पर्सनल इश्यूज, नहीं जा पाते। तो अपने आप को एसएसबी में जब जा रहे हो, ये मत सोचना कि यार मैं कहीं कुछ मेंटरशिप नहीं ले पाया तो माय चांसेस टू गेट रिकमेंडेड आर 0%, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इसका रीजन बताता हूँ। देखो जो पर्सनालिटी होती है ना, इट इज नॉट दैट समबडी कोचिंग वाला विल पुट समथिंग इन यू ऑल ऑफ अ सडन एंड यू विल गेट रिकमेंडेड, है ना, वो कोई मेडिसिन नहीं दे रहा है। पर्सनालिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लास्ट 8 to 10 years। जो आपका पर्सनालिटी चेक होता है ना, वी कॉल इट अ व्यक्तित्व इन हिंदी, वो लास्ट 8 to 10 years का चिट्ठा होता है ना। जो कोई कोचिंग वाला ओवरनाइट या 3-4 महीने में भी चेंज नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई माई सेल्फ इज मेंटरिंग बट आई एम टेलिंग यू इट कैन नॉट बी चेंज। Only coaching person or mentor is trying to streamline you, he is helping you out to present yourself in all the 3 aspects of psych, interview, GTO, what you are, right? तो अगर मान लो आपने नहीं भी ले पाए गाइडेंस तो एसएसबी में जा जाओ डायरेक्ट, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी 8 to 10 years में बनी है। अगर नहीं भी गाइड नहीं तो कोई ना, विल गिव अवर बेस्ट, स्टिल देयर आर इक्वल चांसेस। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर गए तो यू विल गेट रिकमेंडेड, दैट्स नथिंग लाइक दैट यू वोंट गेट रिकमेंडेड, है ना। बट हाँ, अगर टाइम मिले, पॉसिबल हो तो डू टेक मेंटरशिप फ्रॉम वेयरएवर यू वांट, बट अगेन लास्ट अगेन वो ना, नहीं भी हो पाया तो एसएसबी में अपना पूरा बेस्ट देना। आज भी लोग होते हैं और कल भी होंगे, ये भी बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं है दैट पीपल वोंट गेट रिकमेंडेड, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, यू लाइक सर हाईलाइटेड की प्रेजेंटेशन वाली चीज है ना, तो कोचिंग नोबडी कैन चेंज योर पर्सनालिटी, कोई भी कोचिंग रहे, बट एक राइट मेंटर आपको बता सकता है कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को एसएसबी में। बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे सर मैंने भी कि जिनमें होती है वो चीजें, पर वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को। जैसे देख रहे हैं तीनों असेसर, एक 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी देख रहे हैं एक एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर को लेके, वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो एक राइट मेंटर आपको यहाँ गाइड कर पाएगा कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है इन एसएसबी, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स यू। और यही सर ने किया, लाइक मल्टीपल फेलियर्स के बाद में सर ने रेक्टिफाई करी मिस्टेक्स की, यहाँ एग्जैक्टली मिस्टेक कर रहा है तो अपने वे ऑफ जो आंसर है उसको सुधार, और उसके बाद में आई मेड इट। So this is, chalo, that's great. So 1.5 years down the line we'll be looking him in the overalls wearing ranks. The only question now which is incomplete, what he'll be getting, fighters, helicopters or transport?
Sir. which will depend on his performance, his own priority, Yes, sir. and obviously the call of Air Force that what they want to give. Yes, है sir. ना? I'll put in all the hard work. I'll do my best in training to get fighters. और एक काम और करना, जहां भी कोई एस्पिरेंट मिले इन Yes, एनी sir. मैनर, डू शेयर योर नॉलेज सो दैट, है ना, सीखी चीज किसी के काम आ जाए तो विल बी अ ग्रेट थिंग. Yes, sir. एंड आई एम श्योर सिंस यू हैव अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, तो एटलीस्ट जिनकी दिक्कत हो उनको तो बिल्कुल ही हेल्प Yes, sir. करना है एनी मैनर, राइट? Yes, चलो, sir. थैंक यू सो मच, Thank ऑल you, द sir. बेस्ट. Thank you अभी so अब much, काजू sir. कतली बटेगी सबके अंदर. काजू कतली डब्बा भी दिखा रहे हैं, देखो ये सिर्फ मिठाई नहीं है, ये एक इंसान की वो चिट्ठा है, क्या बोलते हैं उसको, अधिकारी बनेगा. इतनी मिठास है ना, फ्लाइंग की मिठास सबको बटेगी आज, है ना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्वीट्स, इट्स मोर देन दैट, राइट? चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू टू अवर कैमरामैन, ही इज फ्रॉम सैनिक स्कूल लखनऊ. आप कुछ बोलना चाहेंगे पीछे से भाई साहब? I did my job. You did your job. I am sure you did your job in an excellent manner. Thank you so much, everyone.